A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمنی منه ما جہلت. اللهم خذ بیدک. پھر بچوں آج ہم لوگ میتھمیٹکس 5th کلاس چیپٹر نمبر 8 کا نیا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور آج کے اس لیکچر میں جو ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے وہ کیا ہے؟ ایکسرسائز نمبر 1 ہے. اور ایکسرسائز نمبر 1 میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے پیریمیٹرز کیلکولیٹ کرنے ہیں. کس کے؟ اسکوائر اور ریکٹینگل. دو ایسی جیومیٹریکل فگرز ہیں جن کے بارے میں کل میں آپ کو بتا چکا ہوں پریویس لیکچر میں. سن رہے ہو نا؟ اور میں نے ان کے فارمولے بھی کل آپ کو سمجھا بھی دیے تھے اور ڈرائیو بھی کروا دیے تھے کہ یہ فارمولے آپ کو بک پہ دیے ہوئے یہ کیسے ہم ڈرائیو کرتے ہیں. تو آج ہم نے وہ فارمولے، وہ میتھڈالوجیز جو ہم نے کل پیریمیٹر کیلکولیٹ کرنے کے لیے سیکھی تھی، آج ہم انہیں استعمال کر کے کیا کریں گے؟ کوسچنز کو سالو کریں گے. اینڈ ناؤ دس ایکسرسائز از دی اپلیکیشن آف دوز فارمولائی. سو آئیے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال ہے فائنڈ دا پیریمیٹر آف گیون اسکوائرس. یہ 3 سوال آپ کو دیے ہوئے ہیں، 1 2 3، اور تینوں کیا ہے؟ اسکوائرز ہیں. ایسا ہی ہے. اور اسکوائر کا پیریمیٹر کیسے لائیں گے مجھے یہ بتاؤ. یا تو 7 7 7 7 چاروں کو ایڈ کر لو، پیریمیٹر آ جائے گا. کیونکہ پیریمیٹر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جیومیٹریکل فگر کی باؤنڈری کی لینتھ کو، باؤنڈری کی لینتھ کو اس کا پیریمیٹر کہتے ہیں. تو یا تو ان چاروں کو ایڈ کر لو، ان چاروں کو ایڈ کر لو، ان چاروں کو ایڈ کر لو، پیریمیٹر مل جائے گا. ٹھیک ہے، ان چاروں کو ایڈ کر لو، کیا ہو جائے گا؟ پیریمیٹر مل جائے گا. اب کیا کریں گے؟ اسٹارٹ کرتے ہیں. کوسچن نمبر 1. سولوشن. length of one side of square. ٹھیک ہو گیا؟ کتنی دے رہے ہیں آپ کو یہاں پہ؟ 7 میٹرز. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ 7 میٹرز ڈال رہا ہوں. پرابلم کسی کو. اب ہم یہاں پہ سیدھا سیدھا پیریمیٹر لکھیں گے. پیری میٹر آف اسکوائر. اور اگر میں اس کو اسمال ایل کہہ دوں، کیا کہہ دوں؟ تو یہ برابر ہوگا 4 ملٹیپلائی ایل کے برابر. یاد ہے نا کل میں نے یہ پروف بھی کرایا تھا. تو 4 ایز اٹ از لکھیں گے، ملٹیپلائی ایل کی جگہ پہ 7 ڈال دیں گے. آنسر کتنا آ جائے گا؟ 28 میٹرز. یہ پیریمیٹر ہے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اور ایک اور میتھڈ میں نے کل بتایا تھا آپ کو، یہ میں سیکنڈ میتھڈ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے میں لکھ دیتا ہوں. سیکنڈ میتھڈ، جو 4 سائڈیں آپ کو گیون ہے، پیریمیٹر کس کے برابر ہوگا؟ L پلس L پلس L پلس L. پرابلم کسی کو؟ ان چاروں سائڈوں کی لینس کو آپ ایڈ کرو، آپ کو پیریمیٹر مل جائے گا. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ بھی 7، یہاں پہ بھی 7، یہاں پہ بھی 7 اور یہاں پہ بھی 7. اب بجائے اس کے میں 7 کو 4 ٹائمز ایڈ کروں، میں نے آپ کو جب ٹیبلز کے بارے میں بتایا تھا چیپٹر نمبر 2 میں، تو میں نے کہا کہ ریپیٹڈ ایڈیشن جو ہوتی ہے اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ 7 4 ٹائمز ایڈ ہو رہا ہے، 4 لکھو اور اس کو لکھو ملٹیپلائی 7. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 جو ہے کتنی دفعہ ایڈ ہو رہا ہے؟ 4 ٹائمز ایڈ ہو رہا ہے. آنسر کیا آ جائے گا؟ تو پیریمیٹر وہی آئے گا. پرابلم کسی کو؟ نیکسٹ جی کوسچن نمبر 1 پارٹ نمبر بی ہے. سولوشن. اب میں ڈائریکٹ سمبلز یوز کروں گا. یہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا، لینتھ آف ون سائڈ از آف دا اسکوائر از L، اسمال L. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ فوراً سے کیا لکھا کروں گا؟ اسمال L از اکول ٹو کتنی ہے جی؟ 13 سینٹی میٹر. 13 سینٹی میٹر. ٹھیک ہو گیا. اور کیپیٹل P ہم یوز کرتے ہیں کس کے لیے؟ پیریمیٹر کے لیے.
और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? 4 मल्टीप्लाई एल या एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4 दफा एल को ऐड करो। सो जो पेरीमीटर आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 13। अब कितना आ जाएगा? 52, 7 सेंटीमीटर डालेंगे। एक ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि आप पेरीमीटर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, ऐड करने के बाद आंसर 52 सेंटीमीटर ही आएगा। प्रॉब्लम किसी को? सो ये दोनों आपके आंसर्स हैं। आगे चलें। फार्मूला याद नहीं रहता तो फिर चारों को ऐड कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एंड इज पार्ट नंबर सी, सॉल्यूशन। पार्ट नंबर सी में हमें जो वन साइड की लेंथ दी गई है वो क्या है? 4 मीटर्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल एल दैट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, वो 4 मीटर्स है, और कैपिटल पी जो कि पेरीमीटर है वो क्या? 4 मल्टीप्लाई एल के बराबर है। सो कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 एंड द आंसर इज 4 4 द 16 मीटर्स। नहीं तो फिर एक और मेथड है, वो क्या है? पेरीमीटर बराबर है एल प्लस एल प्लस एल प्लस, जितनी साइडें हैं सबको ऐड कर लो। सो सारी बाउंड्री की लेंथ आपके पास आ जाएगी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, टोटल 16 ही बनेगा, 16 मीटर्स। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया सबको? सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लोज हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर ए हम देखेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कहा जा रहा है जी फाइंड करें पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स जो होती हैं ये ऐसी 4 कोनों वाली बंद शक्लें होती हैं जिनकी अपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड्स की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो बड़ी साइड की जो लंबाई है हम उसको लेंथ क्या देते हैं, और जो छोटी साइड है उसकी जो लेंथ है हम उसको विड्थ क्या देते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सो कैपिटल एल से मैं लेंथ लिखा करूंगा, किसके बराबर है जी? लेंथ 9 सेंटीमीटर, और डब्ल्यू से मैं लिखा करूंगा विड्थ, क्या जी? विड्थ 5 सेंटीमीटर। अब आप सबको कल मैंने बताया था कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ। और बेटा एक बात याद रखनी है आप सब ने, मैं यहाँ पे आपको एक लिख के दे रहा हूँ, पेम दास एस, पी से पैरेंथेसिस होता है क्या? कि पहले जो ये इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है? इस ब्रैकेट को, इसको पहले इसके अंदर मौजूद चीजों को आपने सॉल्व करना, फिर एक्सपोनेंट्स, क्या एक्सपोनेंट्स कहते हैं पावर्स को, किसको? फिर बेटा आपने पावर्स को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर डिवीजन करनी है, और फिर बेटा आपने क्या करनी है? एडिशन, और लास्ट पे आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ये रूल है किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बात समझ आई नहीं आई? इसे प्रेसिडेंस ऑर्डर कहते हैं कि किस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है। इस रूल को समझो। पेमदास तो याद रहेगा ना या नहीं? सो याद रखना, ये ब्रैकेट के अंदर जो एल प्लस डब्ल्यू हम पहले इसको ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यहाँ मल्टीप्लाई डालूं या ना डालूं इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। जब ब्रैकेट और नंबर के दरम्यान में कुछ ना हो तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। सो कैपिटल P विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद, मल्टीप्लाई नहीं डाल रहा मैं, इसका मतलब फिर भी क्या? मल्टीप्लिकेशन ही है। लेंथ क्या? 9 और विड्थ क्या? 5। प्रॉब्लम किसी को? 9 प्लस 5 कितना होता है? 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, से कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। अभी बात नहीं समझ आई? दिस इज द पेरीमीटर। दूसरा मेथड क्या है जी पेरीमीटर को रेक्टेंगल के कैलकुलेट करने का? आपको पता है रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, ऐसे ही है, लेंथ विड्थ लेंथ विड्थ। तो हम क्या करेंगे? लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। समझ आया नहीं है? अब लेंथ की वैल्यू डालो, विड्थ की वैल्यू डालो, लेंथ की वैल्यू डालो, विड्थ की वैल्यू डालो, और इन सबको ऐड करके आंसर क्या आना? 28 ही आना। पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 9
प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5, इसको ऐड कीजिएगा, आंसर 28 सेंटीमीटर्स आएगा आपके पास। दोनों मेथड समझ आ गए? चाहे इससे कर लो, क्योंकि हमने बाउंड्री की लेंथ निकालनी है और बाउंड्री की लेंथ में जितनी भी साइड्स हैं उन सबको हम ऐड करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर बी। सॉल्यूशन कैपिटल एल और डब्ल्यू हमें चाहिए। एल गया जी, बड़ी साइड की लेंथ को हम एल कहते हैं, ठीक है, लेंथ कहते हैं। तो दिस इज 8 मीटर्स और छोटी क्या है 3 मीटर्स। तो करेंगे क्या अब हम लोग, पेरीमीटर निकालना है। सो कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। प्रॉब्लम है किसी को? सो कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 2 मल्टी, लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है 3, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? और ये मीटर में थे ना, तो इसके साथ आंसर में मीटर आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? ये आपका आंसर आ गया। नहीं तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। अब वैल्यूज डालो, लेंथ क्या थी 8, विड्थ 3 मीटर्स, लेंथ 8 और फिर 3, सबको ऐड कर लेना, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 22। लेंथ क्योंकि मीटर में है तो लिहाजा पेरीमीटर भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा। तो क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड इज पार्ट नंबर सी। सॉल्यूशन लेंथ और विड्थ हमें पता करनी है। लेंथ क्या है जी 12 मीटर्स और विड्थ क्या है 12 मीटर्स एंड 2 मीटर्स। पेरीमीटर आप सबको पता है 2 मल्टीप्लाई, तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2, लेंथ कितनी है 12 प्लस 2, मल्टीप्लाई ना भी डालूं तो मतलब मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2 14, 14 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 28। ये पेरीमीटर आ गया आपका। उर्दू में मुहीत कहते हैं इसे, नहीं पेरीमीटर को इसे मुहीत कहते हैं। ठीक हो गया, चले आगे। सो अब हम क्या करेंगे, वही एक बेसिक मेथड है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस, 4 साइड्स है ना, तो अब हम चारों को ऐड, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। सो लेंथ कितनी है विड्थ ऐड कर लीजिएगा, आंसर 28। So we have done 2 questions. Any problem? No. Now, if the length of a square shaped crop field, सुन रहे हो? Yes. Square shaped crop field. Length समझते हो? Yes. If the length of a square shaped crop field, crop field क्या होता है? पुत्र, crop का मतलब होता है फसल। क्या होता है? यहाँ पे क्रॉप फील्ड है, ये फसल का खेत है। और कभी छलियां लगी हुई देखी हैं और गंदम देखी है, और उसको भी क्रॉप कहते हैं, उसको भी फसल कहते हैं। नहीं बात समझ आई? और देखी है कभी? और खेतों में गए हो, ये एक खेत आपको सामने नजर आ रहा होगा, सब नजर आ रहा है। इस खेत सुन रहे हो कि एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 29 मीटर है। ये कहा आपको उन्होंने, इफ द लेंथ, अगर लंबाई ऑफ ए स्क्वायर फील्ड या स्क्वायर शेप्ड फील्ड, एक मुरब्बाई शक्ल के खेत या फसल के खेत की जो लंबाई है वो 29 मीटर्स हो, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। और भाई आपको स्क्वायर की एक साइड की लेंथ दे दी है ना, यहाँ देखो ऊपर 7 मीटर दी थी, यहाँ पे कितनी दे दी 29 मीटर्स। तो भाई हम इसको सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सुन रहे हो? yes. मैं यहाँ लिखता हूँ लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी है जी, स्मॉल एल डाल रहा हूँ और 29 मीटर। पेरीमीटर निकालना है, ऑफ स्क्वायर कैपिटल पी होगा, और आप सबको पता 4 मल्टीप्लाई एल के बराबर होगा। 4 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई एल की जगह पे क्या आ जाएगा 29, ऐसा ही है।
अब बेटा 4 को 9 वाली साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 4 9 था 36, 6 लगाया, 3 कैरी किया, 4 2 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। 116 मीटर्स ये पेरीमीटर है, इसको एज इट इज चला लो। सुन रहे हो? ये भी किसी का दिल करे साथ लिखने को तो लिख लेना। पेरीमीटर आपने निकाल लिया कितना 116 मीटर्स, ठीक है। तो ये उस खेत की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ है, उसकी बाउंड्री की लेंथ है। प्रॉब्लम किसी को? सो प्यारे बच्चों तीसरा सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं आगे। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर शेप, द पेरीमीटर ऑफ ए क्या कह रहे हैं? पेरीमीटर जो है किसका, एक स्क्वायर शेप का, वो 72 सेंटीमीटर है। ये शक्ल नजर आ रही है ना आपको? व्हाट विल बी इट्स लेंथ, उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी? हमने एल निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पे आज यूनिटरी मेथड दोबारा यूज होगा, ठीक है। गौर से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा ही है ना बेटा? सॉल्यूशन लिख रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर है जी? 72 सेंटीमीटर से। 72 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है किसके बराबर होता है? स्क्वायर के लिए 4 मल्टीप्लाई एल, ये लेंथ है, ठीक है। सो कैपिटल बी की क्या वैल्यू है? 72। 4 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई एल भी लिखेंगे। बेटा हम ये चाहते हैं ये वाला 4 जो है यहाँ से गायब हो जाए, तो हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड में आप सबने सीखा, दोनों साइडों को 4 से डिवाइड कर देंगे। इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 था 4, 4 1 था 4। 1 मल्टीप्लाई एल, आंसर क्या आ जाएगा? एल ही आ जाएगा। और 4 को जब हम 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 72 को, तो क्या रिजल्ट आएगा पता है आपको? लिख के देता हूँ। 72 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 था 4, माइनस किया, आंसर 3 आ गया 32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे भी 32 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? 18 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम है किसी को? बस इतनी सी बात थी। कोई मुश्किल काम है तो मुझसे पूछे। पक्का? पांचवा सवाल है बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ गिवन लेंथ। ये आपको नीचे लेंथ दे दी है, स्मॉल एल की वैल्यूज दे दी हैं आपको, और कहा है कि 4l निकाल के दो, मतलब पेरीमीटर्स बाय यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ आप बाउंड हो गए हैं, यहाँ आप l प्लस एल प्लस एल प्लस एल नहीं कर सकते। लेंथ को 4 दफा ऐड, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, या जब पता 4 दफा लेंथ को ऐड करना है तो क्यों नहीं 4 से मल्टीप्लाई करते? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8। अब ये हमने जल्दी जल्दी करना है, और से सुनते जाओ मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 सॉल्यूशन। मैं साइड पे ना आपको स्क्वायर भी बना के दिखाता जाऊंगा, ये देखें। और जो स्मॉल एल हमें दी गई है, एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? और बाकी सबकी भी यही होगी। सो अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्मॉल एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और कैपिटल पी किसके बराबर है? फार्मूला कहता है 4 मल्टीप्लाई स्मॉल एल के। कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5। आंसर कितना आ जाएगा? बेशक आप यहाँ पे सेंटीमीटर 60 डाल दें, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रॉब्लम है किसी को? बस जी इतना सा काम कहा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर बी। प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सॉल्यूशन टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ठीक हो गया। स्मॉल एल कितना दे दिया हमें? 12 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और अब हम क्या करेंगे? स्मॉल एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल, एंड कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। सो क्या आंसर आ जाएगा? वेरी गुड, 48 सेंटीमीटर। मसला है किसी को? इतने आसान सवाल है और आप डर रहे हैं देख देख के। क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर सी सॉल्यूशन। ज्योमेट्री आसान होती है मुश्किल होती है? बहुत आसान है। सिर्फ क्या बेटा आपको चीजों को डील करना आना चाहिए बस। 6 मीटर, तो स्मॉल एल इज इक्वल टू 6 मीटर। सही हो गया? पक्का? और अब आगे क्या करेंगे हम लोग?
capital P is equal to 4 multiply small l, and capital P is equal to 4 multiply 6, and this will be 24 meters. Problem है किसी को? अच्छा, this is your answer. Question number 5, part number D. Solution. स्क्वायर की क्या दे दिया? एक साइड की लेंथ आपको दे दी है. स्मॉल एल कितना दे दिया आपको? 19 सेंटीमीटर्स. सोल्यूशन. अब स्मॉल एल तो 19 सेंटीमीटर है. कैपिटल पी आप सबको पता है 4 मल्टीप्लाई एल. सो कैपिटल पी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई स्मॉल एल कितना जी? 19 सेंटीमीटर. अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा? 76. फिर सोच लो, पक्का? 76 सेंटीमीटर्स. दिस इज द आंसर ऑफ पेरीमीटर. नो क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर E. Solution. The length of the one side of a square is given to you, and that is वो कितनी है? स्मॉल एल कितनी है? 26 मीटर्स. ठीक हो गया? ये लिखा हुआ है, ठीक है. सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल एल इज इक्वल टू 26 मीटर्स, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी, बिकॉज वी नो दैट 4 मल्टीप्लाई स्मॉल एल होता है. कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 26, एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 4 द 24 होता है. 4 लगाया, 2 कैरी किया, 4 टू द 8 प्लस 2 कितना हो गया? ठीक है, साथ हमने मीटर डाल दिया. क्लियर? सभी की आवाज नहीं आई? क्लियर है? अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर 2.5 सेंटीमीटर. देखते हैं जी. पहले मैं स्क्वायर बना लूँ ना. स्मॉल एल कितना दे दिए? 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर. so small l is equal to 2.5 सेंटीमीटर्स. आगे चलते हैं जी. कैपिटल P is equal to 4 मल्टीप्लाई स्मॉल l होता है. कैपिटल P will be equal to 4 मल्टीप्लाई 2.5. अच्छा बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन करते हुए घबराना कोई नहीं है. 4 से ही हो रही है ना मल्टीप्लिकेशन, 1 डिजिट से. सो 4 5 द 20, 0 लगाया, 2 कैरी किया, 4 टू द 8 प्लस 2 कितना हो गया? क्या कर रहे हो? 4, देखो मेरी बात सुनो. 4 5 द 20, हमने 2 कैरी कर लिया ये लो, और 4 टू द 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10. ये 10 हमने लगा दिया. अब यहाँ देखो कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद. तो यहाँ से गिनो 1 और यहाँ पॉइंट लगा दो. ठीक हो गया? और इसके साथ सेंटीमीटर भी लिख देना. असल में 10 सेंटीमीटर, असल में 10 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया. ठीक हो गया? आगे चले भाई. क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर जी. सॉल्यूशन. 9.7. The value of small l is 9.7 meters. Small l is equal to 9.7 meters. Capital P बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई स्मॉल l के. So capital P will be equal to 4 multiply 9.7. Capital P will be equal to 7 for the 28. 2 कैरी कर लिया, और 9 for the 36. 36 प्लस 2 कितना हो गया? 38. अब बच्चे कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद. तो यहाँ हम 1 के राइट साइड से ना 1 गिन के उसके बाद पॉइंट डाल देंगे, और साथ हम लिखेंगे मीटर्स. ठीक है, क्योंकि लेंथ मीटर में है ना. क्वेश्चन नंबर 5 H. Solution. Small l is equal to 15 meters. So now small l is equal to 15 meters. Capital P is equal to 4 multiply l, and capital P is equal to 4 multiply 15, and capital P will be 60. ठीक है, मीटर. 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 60 ही आएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर सॉल्यूशन. स्मॉल एल कितना दे दिया? 16.6 सेंटीमीटर्स.
स्मॉल एल इज इक्वल टू 16.6 सेंटीमीटर्स। नाउ कैपिटल पी बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई स्मॉल एल के। कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 16.6। 6 4 द 24, 4 लगाया, 2 कैरी किया, 4 6 द 24, 24 प्लस 2 कितना हो गया 26, 26 फिर 2 कैरी किया, 4 1 द 4 प्लस 2 6, और एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, 7 क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर जे। सॉल्यूशन स्मॉल एल कितना है 10 मीटर्स, ऐसा ही है। सो स्मॉल एल इज इक्वल टू 10 मीटर्स। कैपिटल पी जो कि पेरीमीटर है 4 मल्टीप्लाई स्मॉल एल, कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10। क्लियर हो गया। सो दिस विल बी 40 मीटर्स, क्योंकि लेंथ मीटर्स में है तो पेरीमीटर भी मीटर्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर और हम सॉल्यूशन लिखेंगे। एंड स्क्वायर की जो लेंथ है दैट इज 7.1 सेंटीमीटर्स। स्मॉल एल इज इक्वल टू 7.1 centimeters. Capital P will be equal to 4 multiply small l. Capital P will be equal to 4 multiply small l is 7.1 centimeters. 4 1 द 4 आ जाएगा, 4 7 द 28 आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट हम यहाँ राइट साइड पे लगा देंगे, साथ लिख देंगे सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 एंड इस पार्ट नंबर 2.7 centimeter. सॉल्यूशन स्मॉल एल कितना दे दिया हमें 2.7 सेंटीमीटर्स। ये स्क्वायर हमारे पास है और इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 2.7 सेंटीमीटर्स है। कैपिटल P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। कैपिटल P विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई स्मॉल एल इज 2.7 सेंटीमीटर्स। नो कैपिटल P विल बी इक्वल टू 4 7 द 28 होता है, 8 लगाया, 2 कैरी किया, और 4 टू द 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, और एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे सेंटीमीटर्स। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया सबको? इसी के साथ आज के ये लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।